اصل تو ہم یہاں جمع ہونا آج بہت مبارک مجلس ہے، بہت مبارک محفل ہے۔ یہ قریشی برادری میں حافظ ارشل یہ پہلا بیٹا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہوا، اور ساری قریشی برادری، تو میں کہوں گا قسم اللہ کی آپ پوری دولت بھی اس بچے کے قدم پہ رکھو گے نا تو بھی اس کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اب میں آپ کو ڈائریکٹ حدیث سے بتاتا ہوں، قیامت کے دن حافظوں کی شان کیا ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ ہاں حافظ الطاف صاحب صحیح ہے کہ نہیں مفتی صاحب؟ کیا شان ہوگی حافظ کی؟ حافظ کی شان کیا ہوگی بھائی؟ جس کے سینے میں قرآن ہوگا نا، جیسے حافظ ارشل، دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنائے، بولو آمین۔ ارے اگر ہمارے بچے نہیں بنتے بولو اللہ ہمارے پوتوں کو حافظ بنائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے نواز، ارے اپنی برادری میں ایک کو بنا لو، بہت سو کو جنت میں نکل چلا جائے گا۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں، قیامت کے دن اللہ حافظ کو بلائیں گے، جیسے حافظ ارشل ہے نا، جتنے بھی جن کے سینے میں قرآن ہے اللہ قیامت میں حافظ کو بلائیں گے، وہ حافظ کاپتا بھائی قیامت میں تو سبھی کاپتے ہوں گے، وہ تھر تھراتا یوں اللہ فرمائیں گے کیوں کاپ رہا، تیرے سینے میں قرآن ہے؟ کہے گا اللہ بہت ڈر لگتی ہے اللہ بہت۔ اللہ کیا فرمائیں گے، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، تجھے نہیں دوں گا، دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن کا کو اتارتا۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے، بخاری شریف کی روایت یا مسلم شریف کی روایت، اللہ کیا فرمائیں گے، اللہ قیامت کے دن حافظ کو بلا کر فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ حافظ کو بلائیں گے، ادھر آئے گا، قرآن پڑھو اور جنت کی سیڑھی چڑھو۔ عجب اتفاق، قرآن میں 6666 آیتیں، 6666 آیتیں، اور جنت کی سیڑھی بھی 6666۔ اللہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر آخری آیت من الجنت والناس، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو نعرہ تکبیر۔ اس پہ نعرہ لگانے جیسا، کیونکہ ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ حافظ جیسے حافظ ارشل یا جتنے حافظ ہیں پڑھتے جائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھتا جائے گا، آخر میں من الجنت والناس۔ آپ سوچو کہ تھکن لگے گی، اللہ جنت میں جانے والے کو کبھی تھکن نہیں دے گا، بڑے آرام سے پڑھتے جائیں گے پڑھتے۔ آپ کو معلوم ہے جب حافظ من الجنت والناس سامنے جنت کا دروازہ اور وہ بھی کھلا ہوا، بولو سبحان اللہ، اور رائٹ میں فرشتے کھڑے، لیفٹ میں فرشتے کھڑے، حافظ بیچ میں آرام سے کھڑا ہے۔ اب تو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ فرشتے سب طرف سے سلام سلام کرتے نا، بڑے مالدار کو کرتے نا سلام سیٹ سلام سیٹ۔ ہمارے سلام کی تو زبان میں بھی معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہوتا، فرشتوں کی زبان میں جو میوزک اور جو ادا ہوگی وہ کیسی ہوگی، اور جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور فرشتے چاروں طرف سے حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور چاروں طرف سے فرشتے سلام سلام سلام، اور حافظ کو کہیں گے تیرے سینے میں قرآن، تیرے سینے میں قرآن، آگے بڑھتا جا، جنت کا دروازہ یوں کھلے گا۔ آہا کتنا لمبا چوڑا جنت کا دروازہ ہوگا۔ جیسے حافظ اندر انٹر ہوا، بولو کہاں انٹر ہوا، ہو گیا جنت میں انٹر ہو گیا، فرشتے خاموش، سائلنٹ، کوئی آواز ہی نہیں، ایک دم سائلنٹ۔ تو حافظ خود کہے گا اے فرشتوں کرو نا سلام، بہت اچھا لگتا تھا، کائے کو سلام نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ کی آواز آئے گی میرے بندے اب فرشتے سلام نہیں کریں گے، تیرے سینے میں قرآن ہے، اب تیرا پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ بولو اللہ، یہ سورہ یاسین پڑھو نا، سورہ یاسین اللہ نے کیا فرمایا، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم۔ کئی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جیسے حافظ اندر داخل ہوگا اللہ سلام، کون؟ آج ہم قرآن پڑھتے سب کو اچھا لگتا، تو اللہ کی آواز کما یلیق بجلالہ و شانہ، جب اللہ سلام کریں گے نا تو حافظ وہیں رک جائے گا، اللہ کہیں گے کیا ہوا، تو اللہ جنت مل گئی،
तेरी आवाज़ से बढ़कर कौन सी जन्नत होगी। अल्लाह कहेंगे अभी तो तूने कुछ नहीं देखा, अंदर आ, हूरें तेरा इंतज़ार कर रही है, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत की नहरें तेरा इंतज़ार कर रही है, बोलो सुभान अल्लाह। शराबन तहूरा तेरा इंतज़ार कर रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के मेवे इंतज़ार कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और जन्नत के फल भी कैसे होंगे बेटा, होंगे ना। हाँ, जन्नत में हम जाएंगे ना तो वो आता है ना अपना अनार, अनार क्या बोलते हैं आप लोग, दाड़म, दाड़म। हाँ, इतना सा होगा, इतना सा। ये जन्नत के अंदर जाएगा, जैसा हाफिज अर्शील अंदर जाएगा, कहेगा ये क्या, तो कोई हूर बोलेगी जन्नत का दाड़म है। और जन्नत में दाड़म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बोलो तो हाँ, कैसा मालूम आपको मिलेगा। अरे कुरान में लिखा है, अरे बोलो ना किसने लिखा, फीहिमा फाकिहतु व नख्लु व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खास प्रोमोग्रेनेट दाड़म का जिक्र कुरान पाक में आया। तो जैसा जन्नती जाएगा तो हूर कहेगी ओ मेरे सरताज खा लो ना। हूर चाहिए कि बीवी चाहिए जन्नत, हैं? आप जवाब दे दो। नहीं, कोई भी जवाब नहीं देगा, सबको टेंशन है, मुफ्ती साहब भी नहीं देंगे जवाब। हाँ, हूर चाहिए कि बीवी? हाँ, ये बहुत होशियार है, ये तो अपने से आगे बढ़ गया। चलो बीवी की बात बाद में, पहले जन्नत में वो दाड़म को देखेगा ना तो तो क्या कहेगा मालूम, अपने हूर को कहेगा ये तो दुनिया में भी हमारे गोधरा में भी 15 रुपए का मिलता था, जन्नत में तो हमने सोचे थे बहुत अच्छा, ये क्या है इन्हें तो दाड़म में। तो अल्लाह की आवाज़ आई है, मेरा बंदा खा के तो देख, मेरा बंदा खा के तो देख। जैसे वो दाड़म खाना शुरू करेगा, वो दाड़म की साइज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना बड़ा दाड़म हो जाएगा कि 100 जन्नती बैठकर उसमें खाएंगे फिर भी जगह बाकी रह जाएगी। जन्नत का दरख्त, ओहो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी घोड़े पर बैठे और घोड़ा दौड़ाए 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 100 साल तक घोड़ा दौड़ाए, जन्नत के दरख्त का एक साया भी खत्म नहीं होगा। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। चलो हम हाफिज की बात करें ना, हाफिज जन्नत में पहुंच गया, बोलो जन्नत में किसने सलाम किया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने सलाम किया कमा यलीक़ु बि जलाली व शानी। अब क्या होगा मालूम, हाफिज आराम से जन्नत में, पूरों में, बड़े मज़े में, जन्नत में कोई टेंशन, जन्नत में खूब खाने का। अभी आजकल सबकी डाइटिंग बहुत जोर पे चलती है, जिम में भी बहुत जोर पे जाते हैं। जन्नत में खूब खाने का, खूब पीने का, पेशाब भी नहीं आएगी, पाखाना भी नहीं आएगा, सिर्फ करके डकार लेने का, खाना हजम। और डकार यहाँ कोई लेवे तो सब कहते और जन्नत में डकार लेगा तो बाजू वाला कहेगा एक और ले ले, मुश्क की खुशबू आ रही है। नारे तकबीर। ये मौलाना भी जन्नत में खुश हो गए, वैसे चुप बैठे थे कब से। चलो हाफिज कहाँ पहुँच गए, बोलो कहाँ पहुँच गए। अब मैं मुझे जो बताना है, कुरैशी बिरादरी वालों, आज कारी अहमद अली और मुफ्ती हारून और मौलाना सलमान और हाफिज अल्ताफ और सब उलमा की तरफ से आपको मुबारकी, ये पहला बच्चा। देखो अब सुनो, अब हदीस पाक में क्या लिखा, हाफिज कुरान जिसके सीने में कुरान है, बोलो जन्नत में आराम है, बोलो जन्नत में आराम है। जन्नत में कोई टेंशन होगा, बोलो कोई टेंशन होगा, साथ में बोलो ना कुछ होगा, साथ में पढ़ो ना, सबको याद है। इन्नलिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा कामयाबी कामयाबी होगी, बागात होंगे, चश्मे होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, जाम का जाम टकराता जाएगा। जन्नत में कोई किसी को गाली। चलो जन्नत ना, अब मुझे पॉइंट पर आना है, फिर आखिरी बात करना है। तैयार हो ना? आप 11 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी बात है। अब हाफिज, जैसे हाफिज अर्शिल या जितने हुफ़ाज़ किराम हैं या जितनी बच्चियाँ हाफिजात हैं, वो सब जन्नत में जाएंगे। अब क्या होगा मालूम, एक दिन अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे। कहाँ में?
जन्नत में। सबको कहाँ जमा करेंगे? और अल्लाह क्या फरमाएंगे? जन्नत की बालकनी में जाओ। ओहो, जन्नत की बालकनी, बोलो सुभान अल्लाह। सब हाफिज जन्नत की बालकनी में जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे जरा नीचे देखो। अब वो कहाँ जन्नत की बालकनी, वहाँ से नीचे देखेंगे तो जोर से सब अल्लाह, ये क्या? किसी को पीप पिलाया जाता है, किसी को नीचे खून पिलाया जाता है, किसी को पेशाब पिलाया जाता है, किसी को कोड़े कोड़े से मारा जाता है, किसी को यूँ जहन्नम की आग में डिबो के फिर निकाला जाता है, किसी को चट्टान से उसके सर को फोड़ दिया जाता है, किसी के जबड़ों को इधर उधर फाड़ दिया जाता है। तो वो हाफिज जितने होंगे ना कहेंगे अल्लाह अल्लाह, ये क्या? अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, ज़रा देख इसमें से किसी को पहचानता है? ये जो जहन्नम में तड़प रहे ना, किसी को तो गौर से देखेगा, कहेगा अल्लाह अल्लाह, ओ मेरा चचा है चचा, ओ अल्लाह, वो मैं उसको पहचानता नहीं लेकिन मैंने गोदरा में उसको देखा था। कहेगा अल्लाह उसको भी नहीं पहचानता लेकिन एक मरतबा मैं पढ़ रहा था तो ये मेरे बाजू में खड़ा था। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, मांग आज मांगता जा, तू जिसकी तरफ इशारा करेगा मेरी कसम उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो एक हाफिज अर्शिल पूरी कुरैशी बिरादरी को पहचानेगा। बोलो पहचानेगा ना बेटा? और पहचानेगा, सिर्फ इशारा करता जाएगा अल्लाह ये चाचा है, अल्लाह ये खाला है, ये खालू है, ये मेरा मामा है, ये मेरी मामी है, ये हमारे गोदरा में रहता था, ये मेरे महल्ले में रहता था, इसने एक मरतबा मुझे खदिया दिया था, इसने एक मरतबा मुझे पानी पिलाया था। अल्लाह कहेंगे बिल्कुल फिक्र नहीं करना, आज तेरी उंगली का इशारा होता जाएगा और मैं जहन्नमी को जन्नत में दाखिल करूंगा। मेरे दोस्तों हम सब मिलकर आज इनका जितना शुक्र अदा करें और इनके अब्बा का जितना शुक्र अदा करें, इनकी माँ का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि माँ ने, भाई बच्चा मदरसे में जाता है, हाँ, खाना बराबर मिलता है। अरे बोलो ना मुफ्ती साहब आप भी गए, मैं भी रहा, हाफिज अल्ताफ आप भी मदरसे में रहे होंगे, माँ बाप को छोड़कर कैसा जाता है? सच कहता हूँ हाफिज अर्शिल भी इसकी गवाही देंगे। पहली रात जब हम मदरसे में जाते हैं ना मौलाना सलमान साहब, रात को यूँ चादर यूँ रखते और सारे मदरसे वाले सो गया, लेकिन काय का सो गया, हम लोग अंदर कभी माँ याद आती, कभी अब्बा याद आते, कभी घर की दीवार याद आती। और खाने का टाइम मदरसे में फिक्स होता है, हमारे यहाँ पे खाने का टाइम फिक्स, शाम को 5 बजे तो खाना, भूख लगे तो भी खाना, नहीं भूख लगे तो भी खाना, पसंद आवे तो भी खाना ना, और सोता नहीं खाऊंगा तो सुबह 6 बजे चाय मिलेगी। मेरे दोस्तों ये मदरसे में पढ़ने वाले, और मैं तो कहता हूँ ठीक है मदरसे में लड़का जाता है ना, जैसे मैं भी पढ़ा, कभी दोस्तों में हम मस्त हो जाते हैं, लेकिन वो माँ तो याद करती है। आज मेरी माँ नहीं, लेकिन मुझे बराबर याद है हम जब मदरसे जाते थे, मेरी माँ कोने में दीवार की तरफ जाके कितना रोती थी। कभी कभी हमको मदरसे में मिलने आती थी, तो जब जाती थी ना तो हम ऐसे जाते थे, माँ ऐसी जाती थी, बार बार मुड़ मुड़ के देखती थी। मेरे दोस्तों वो माँ ने कलेजे पे पत्थर रखा तो ये बेटा हाफिज पाओ, वो बाप ने दूर करके, वो बाप है ना बताता नहीं है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो ट्रेन देखता है ना जो बेटे के इलाके में जाती है, वो बस देखता है जो बेटे के इलाके में जाती, तो वो भी रुमाल लेकर अपने आंखों से आंसू साफ कर लेता कि बस वही जाती है जहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है। मेरे दोस्तों माँ ने कलेजे पे पत्थर रखा, बाप ने जिगर का खून पिया, तब जाकर एक बेटा हाफिज बनकर आता है और पूरी बिरादरी के लिए चांद का टुकड़ा बनकर आता है। इसे दुआ करो कि आज से गोदरा में एक माहौल बनाओ, एक हमारी कुरैशी बिरादरी में एक माहौल बनाओ कि जब जब आएगा बच्चा हम उसी वक्त से नियत करेंगे कि हम अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह, हम अपने पोते को बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हम अपने नवासे को बनाएंगे इंशाअल्लाह। दीन और दुनिया अब तो बहुत आसान हो गया, दीन दुनिया दोनों। पहले क्या होता था, हाफिज होता था तो डॉक्टर नहीं होता। मैं इंग्लैंड जाता हूँ मौलाना, 28 साल इंग्लैंड में मैंने देखा, वहाँ बच्चों को तरावी पढ़ाते हुए, स्कूल भी पढ़ रहा है, तरावी भी पढ़ा रहा है, ट्यूशन पे भी जा रहा है और साथ में मदरसा भी पढ़ रहा है। और वहाँ के माँ बाप, हम कहते हैं ना वहाँ का माहौल बहुत गंदा, बहुत गंदा, मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ का माहौल बहुत गंदा है। वहाँ वो मोबाइल दिया जाता है, आधा घंटा, आधे घंटे के बाद प्लीज़ कीप डाउन, तो मोबाइल रख दिया, बच्चे ने कुरान हाथ में ले लिया। मेरे प्यारों, हम लोगों को तो बहुत मस्ती आ गई है, इसलिए आज मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मेराज की बात, और इस पे बात ख़त्म करूँगा। पूरा मजमा एक बात बोल दे, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। थक गए ना आप लोग? थक गए? आप नहीं थके, मैं तो थका नहीं। बोलो ना एक बार, बोल दो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन तैयार है? साथ में एक हाथ से बोलेंगे, बोलो मुस्तफ़ा का दामन, और पूरा मजमा बोलो हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी नहीं, हमारे
ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, میرا ساتھ دے گا, میرا ساتھ. چلو شروع کرو. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی, آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو سبحان اللہ. کوئی کر سکتا چاند کے دو ٹکڑے؟ ارے بولو کوئی کر سکتا؟ اچھا اس سے آگے والی بات سنو ساتھ میں. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی, بولو نا وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, رات کا سناٹا چھایا ہوا, اندھیرا چھایا ہوا, ہمارے نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, پھر یوں اشارہ کرے, پھر یوں اشارہ کرے, 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے صحراؤں میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے بیابانوں میں چلے. ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارے نبی 3000 کے مجمع کو لے کر چلے, راستے میں پانی ختم ہو جائے, 24 گھنٹے تک پانی کی تلاش چلے, مگر پانی نہ ملے, اور 3000 کے 3000 نبی کے سامنے بیٹھے جائے, ہم کو پانی نہیں ملا. ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائے, زمین پر رکھ دے وے, انگلی مبارک کھول دے وے. وہ 3000 صحابہ کہے اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. مجھے کسی نے پوچھا سب سے اچھا پانی کون سا, تو ظاہری بات ہے ہماری زبان سے نکلتا زمزم. میں نے کہا نہیں, زمزم سے اچھا پانی وہ پانی تھا جو ہمارے نبی کی انگلی مبارک سے نکلا. زمزم کے پیچھے حضرت اسماعیل ہے, زمزم کے پیچھے حضرت ابراہیم ہے, زمزم کے پیچھے حضرت حاجرہ ہے, اس انگلی کے پیچھے ہمارے آقا تاجدار مدینہ ہے, محمد رسول اللہ. آخری بات کامیابی چاہتے ہو؟ کامیابی کی چاہیے آپ کو؟ جنت کی چابی چاہیے؟ کس چیز کو چاہیے؟ جلدی ہاتھ اوپر کرو اور میرے ساتھ میں بولے ہمارے نبی معراج پر گئے تو کتنی نمازیں ملی؟ آواز نہیں آ رہی, کتنی ملی؟ ابھی بھی آواز نہیں, کتنی ملی؟ 50. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون؟ اللہ نے فرمایا جاؤ امت کو کہو, مکے میں جا کے کہو 50 نمازیں. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے اللہ میں جاتا ہوں. وہ تو حضرت موسیٰ ملے, کون؟ حضرت موسیٰ پوچھے کہاں کہاں؟ کہا وہ امت میں جا رہا ہوں. کہا کیا لے کے؟ کہا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ, پیار سے فرمایا جاؤ, اللہ سے کہو امت نہیں پڑے گی, کم کر دیں گے. اور کیا کر دے رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا نا میں اللہ کے دربار. حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ ہی جا سکتے, آپ کے سوا وہاں کوئی نہیں جا سکتا. بولو سبحان اللہ. وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہلے بھی آپ ہیں آخر بھی, یہ وہ جگہ ہے آپ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد یہاں کوئی آئے گا. ہمارے نبی گئے, ایسا تھوڑی بات کہ اللہ نے فرمایا جاؤ 5 نمازیں, نا اللہ نے فرمایا 50 ہے نا, میرے مصطفیٰ 5 کم کر دو. کتنی ہو گئی؟ 45 45. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, نہیں پھر کم کرواؤ. یہ سلسلہ چلتا رہا. 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10, 10 سے. اب میرے دوستوں ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے, جب 5 ہوئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملے مصطفیٰ. کہا جا رہا ہوں. کہا کیا لے کے؟ 5 نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1 2 کم کر دو, یعنی 4 کر دو یا 1 2. میرے دوست گودرا والے, کیا ہمارے نبی روئے ہیں؟ وہ چھٹے آسمان پر, کیونکہ حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر,
बहुत रोए हमारे नबी और फरमाए अल्लाह की कसम अब जाते हुए शर्म आती। मेरे दोस्तों, हमारे नबी साहिब मौजिज़ा थे, साहिब शरीयत थे, साहिब कुरान थे। उनको 5 में 1 करने गवारा। ये उम्मती 15-15 दिन से फजर नहीं पड़ता, कितना बेशर्म है, कितना नफटाई पे उतरा हुआ है, कितना कमीना है, कितना बड़ा गद्दार है। बल्कि जो नमाज कम करता है ना मौला, वो कुत्ते से भी बदतर है। अल्लामा शातिबी बहुत बड़े अल्लाह के वली कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़े वो कुत्ते से बदतर है, क्योंकि कुत्ते को भी सूखी रोटी का टुकड़ा दो तो तुम्हारा दरवाजा छोड़ के नहीं जाता। ये हमारे नबी के करोड़ों एहसान के टुकड़े लिया और यहाँ बैठे कम वक़्त गद्दार धोखेबाज कमीने जो फजर की नमाज कई कई दिन के छोड़े हुए। हमारे नबी को एक कम करा दी थी, रोए हमारे नबी, नहीं मुझे गवारा नहीं होता, और उम्मती को गवारा हो गया। छोड़ रहा है, फजर पे फजर छोड़ रहा है, जोहर पे जोहर छोड़ रहा है, नमाजों पे नमाजें छोड़ रहा है और इतराता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा जुर्म किया, जीना से बढ़ के गुनाह किया, चोरी से बढ़ के गुनाह किया, और जीना से बढ़ के धोखेबाजी की, गद्दारी किया, कुत्ते से बदतर हो गया। और आराम से 8 बजे यूँ अकड़ता अकड़ता बाहर जाता, बैग लेता चला। क्या है ये मेरे प्यारों? अच्छा एक बात आपको बताऊँ, हमारे नबी कितनी नमाजें लेकर आए? अब तो बोल दो कितनी लेकर आए? अच्छा हमारे नबी कहाँ पर आए? मक्का मुकर्रमा। साथ में बोलोगे कहाँ पर आए? अच्छा जब मक्का मुकर्रमा आए ना, आ गए हमारे नबी, आ गए, आंखों में आंसू थे। अल्लाह पूछते, अल्लाह को सब मालूम, फिर भी अल्लाह पूछते मेरे महबूब रो रहे हो, क्या हुआ? हमारे नबी क्या फरमाते? सुनो हमारे नबी क्या फरमाते? अल्लाह इसलिए रोता हूँ, तूने दी थी कितनी? बोलो कितनी दी थी? हो गई कितनी? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे महबूब रोना नहीं, मेरे महबूब रोना नहीं, इसलिए रोते हो कि मैंने दी थी 50 और हो गई 5। अल्लाह इसीलिए रोता। अल्लाह ने फरमाया जाओ फिर 50, रो मत रो, फिर 50। तो हमारे नबी इतने खुश हो गए, अल्लाह मैं मक्के में ऐलान कर दो 50 का। अल्लाह ने फरमाया नहीं, उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब दूंगा 50। 5 भी बाकी, 50 भी बाकी, कैंसल कुछ भी नहीं, उम्मत पढ़ेगी, सवाब दूंगा। जैसा भी कितने लोगों ने यहाँ ईशा की नमाज पढ़ी, बाहर जाएंगे भाई बात करें, यहाँ ईशा के बाद बयान हुआ, लंबा बयान हुआ, तो दिखती बात है भाई कितनी ईशा पढ़ा? 1 ईशा पढ़ा। हम बाहर निकलकर हमारे बोलने का अंदाज है कि मैंने 1 ईशा पढ़ा। आसमान के फरिश्ते कहते होंगे अल्लाह के बंदे तूने 1 नहीं पढ़ा, तू जैसे पढ़ के निकला। अल्लाह ने कहा 10 ईशा लिख दे, 10 फजर लिख दे, 10 जोहर लिख दे, 10 असर लिख दे, 10 मगरिब लिख दे, पढ़ेगा 5, सवाब मिलेगा। मेरे दोस्तों इससे करीम नबी कौन मिलेगा? इससे मेहरबान अल्लाह कौन मिलेगा? इसे कौन कौन तैयार है? बस आखिरी बोलो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैंने कुछ बातें बताई है जिसमें सबसे पहली बात अल्लाह से डरेंगे बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ो। तीसरी बात मैंने बताया ये जैसे हाफिज अर्शील हाफिज हुआ, अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये आयशा बेटी जिन्होंने सुसाइड किया, अल्लाह ये जहेज की लानतों से हमको बचाए बोलो आमीन। और अल्लाह मोबाइल की लानतों से हमको बचाए। और मेरे प्यारों सबको कवर करना है, सबको कवर करना है आपको। तो एक काम, क्योंकि आप सोचेंगे मौलाना ये भी बोल के दे, मौलाना ये भी बोल के दे, मौलाना ये भी बोल के दे। अब कितनी चीज़ें आदमी 2 घंटे में याद करे, तो एक चीज़ याद कर लो, बाकी कुछ याद करो ना करो। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ऑटोमेटिक सब शरीयत अदा कर देगा। तो कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सब के आने जाने बैठने को कबूल फरमाए। मैं मदरसा कुव्वतुल इस्लाम को मुबारकबादी दूँगा, हमारी कुरैश बिरादरी को मुबारकबादी दूँगा, ये खाटकी वार्ड को मुबारकबादी दूँगा, आने वाले मजमे को मुबारकबादी दूँगा, और सबसे ज़्यादा मुबारकबादी दूंगा हमारे हिदायत भाई को जो बड़ौदा वाले यही सारे बयान ऑर्गेनाइज करते हैं। बेचारा बहुत कुछ सुनता भी है और मालूम नहीं हम क्या क्या उसको डांटते रहते हैं, लेकिन अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और अल्लाह हमारे भाई मुफ्ती हारून साहब जो बहुत मोहब्बत करते हैं, हालात के वक्त में जो दामन थामता ना उससे बड़ा महबूब दोस्त कोई नहीं होता। अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब को दोनों जहाँ में जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज अल्ताफ जो इतने लंबे 23 साल से यहाँ मदरसा कुव्वतुल इस्लाम, फिर मैं कहूँगा ये दुनिया की नज़र में इंसान है, अल्लाह की नज़र में वो जन्नती होता है जो कुरान का खादिम होता है। अल्लाह हम सबको कुरान की खिदमत करने वाला बनाए। और मेरे दोस्तों नाराज़ तो नहीं ना आप लोग? नहीं नाराज़ तो नहीं, नहीं होंगी तो क्या करूँ? हाँ दुआ करेंगे तो नाराज़ हुए वही अच्छा, फिर तो दुआ करें। खैर अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। ये हमारा दोस्त बहुत प्यारा है। मैं सही में यहाँ आया तो पहले तेरे को ढूंढ रहा था कि मैंने कहा डिस्टर्ब करने वाला कहाँ है।
चलो अल्लाह इनको भी बहुत अच्छा रखे। और अब ये बच्चा कुरान पाक में इसको पढ़ा दूंगा, आखिरी सूरतें ये बच्चा पढ़ेगा। एक माइक इसकी तरफ कर दो, एक माइक मेरी तरफ कर दो। और देखो एक बात याद रखो, अब ये कुरान पाक ख़त्म होगा ना, हमको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारे नबी फरमाते जो कुरान पाक का हिफ्ज़ जैसा हाफिज़ अर्शील ख़त्म करेगा, जिब्राइल आएंगे इसकी पेशानी को बोसा देकर चले जाएंगे। ये रजब महीने में जिब्राइल आए, नबी के तलवे को चूम कर चले गए, आज इस हाफिज़ की पेशानी को चूम कर चले जाएंगे।